morning, students. A happy morning to you all. Think happy and be positive. I welcome you all, my class 4 students. And today we are having again our GK class. So, we were doing this chapter, A Child's Play. If you all remember, we were doing this chapter last week, A Child's Play. Interesting chapter for you all. So let us learn about some of the most talented and gifted young minds in our world. We have done this. Marie Curie, we have learned about her. We have learned about Blaise Pascal, also who built digital calculator. Now this personality, the famous personality, Pablo Picasso, a famous painter. आप सबको मैंने लास्ट वीक इनके बारे में बताया था. रिमेंबर प्रियांशी सोमानी. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस गर्ल who has done wonders in her life and still doing it, a human calculator. All right, Kim Ang-yong. At the age of 4, he was able to read and write all languages, Japanese, Korean, English. And most important, he started working for NASA when he was 8 years old. I have shared few pictures also with you. Fabiano Caruana, he became the youngest grandmaster in the chess. And Akrit Jaiswal. Last week हमारी ये last slide थी about Akrit Jaiswal. अभी हमने छोटा सा रिकैप किया आपको बताने के लिए कि हमने लास्ट वीक इस चैप्टर से क्या किया था. सो इफ़ यू ऑल रिमेंबर, आई हैव शेयर्ड अ स्मॉल वीडियो क्लिप अबाउट दिस चाइल्ड. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट आई हैव शेयर्ड वन वीडियो क्लिप अबाउट दिस चाइल्ड दैट एट द एज ऑफ 7 ही हैज़ परफॉर्म्ड वन सर्जरी. और उसकी मैंने आपको स्लाइड भी शेयर की थी. राइट? सो let's move forward. Akim Kamara. This is a new slide of today's class. He is a German violinist, child prodigy who began playing at the age of 2. 2 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बनाना शुरू कर दिया था. इसको बजाना, इसके साथ खेलना, म्यूज़िक कंपोज करना उन्होंने शुरू कर दिया था. Akim Kamara. Cleopatra Stratton, आप इनको देख रहे हैं. When she was young, when she was small as a child, and now she is a young girl. So this is a one picture of a single lady, a child, and then after years when she became a lady. So Cleopatra Stratton, बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, she is a singer. The youngest person ever to score commercial success. सबसे छोटी उम्र में उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया. She holds the record for the highest paid young artist, the youngest artist to receive an MTV award. All right, and most important, the youngest artist to score a number. Yes, of course. Basically, सबसे छोटी उम्र में उन्होंने इतना नाम कमाया. She is a youngest artist. She is a singer and sings very well. And the name of the lady is Cleopatra Stratton. Left side पर आप देख रहे हैं जब वो छोटी थी, when she was a child, and now she is a pretty woman today. Great. Malachi Samadi. Malachi Samadi, named as one of the 12 most talented and tiny child prodigies in the world. सबसे छोटी उम्र में नाम कमाना आसान नहीं होता. The Huffington Post. Malachi has been blessed with the amazing gift of music again. See here. This is Malachi Samedi. Can you see his pictures? Now see this video. Drums, I get to play what I feel. If I'm sad, I get to play a sad song. If I'm happy, I get to play a really happy song. My earliest memory is when
was little and I took sticks and crayons and pencils and I would just bang on the table or bang on books. When he was younger, he would just bang on everything. And my wife was saying, you know, he's a drummer. He's a kid. He's not a drummer, he's a kid. So then I got him a pad. And they are talking that he started playing when he was a kid. बहुत छोटा बच्चा था जब उसने ये सब बजाना शुरू किया. He started learning the pad, and from the pad, he was playing to the point where I got him drums. Oh wow! And at 4 years old, he got accepted into music school. Sometimes I think I'm playing with a grown man. Sometimes I play and I'll look up and go, he's a kid. All right, well, try this. And then he'll play, and I don't know if he realizes he's doing it sometimes. He'll do something, play it right back. I'm like, oh, okay. Can you see that? The combination. कितना बड़े हैं वो अंकल जो पियानो बजा रहे हैं और उनके साथ ही इज़ प्लेइंग ड्रम. म्यूज़िक का जो ये कॉम्बिनेशन है, अ यंग आर्टिस्ट, छोटा बच्चा, ही इज़ प्लेइंग ऑन द ड्रम. एंड वो जो अंकल अभी आपने देखे, ही इज़ प्लेइंग अ पियानो. And how he absorbs the music and how he understands all the elements around him and how he interacts with the musicians that are all around him. I want him to be happy. So that's Malhichi Samedi. My children, look at this picture. आप सबको ये देखकर बहुत बिग टाइम इंस्पिरेशन मिल रही होगी. आई एम श्योर इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने इतना नाम कमाया है. आई एम 100% श्योर क्लास 4 के स्टूडेंट्स में बहुत सारे, रादर आई एम श्योर सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट ज़रूर होगा. थोड़ा सा शैतानियों को छोड़ो, अपनी नॉटीनेस को थोड़ा सा टाइम के लिए कम कर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गॉड गिफ्टेड टैलेंट. या सी Truptraj Pandya, child prodigy. Now this little artist was merely 18 months. इसका मतलब है 1.5 year old when he started playing the tabla. Oh my God, 1.5 year old में तो आप सिर्फ सामान तोड़ते हैं. छोटे बच्चे 1.5 साल में सिर्फ यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, सामान को छूते हैं, ये सब करते हैं. अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो 1.5 year ही वॉज सिर्फ एक बच्चा शायद थोड़ा चलना सीखता है सही से. और उस उम्र में ही स्टार्टेड प्लेइंग तबला. ही मास्टर्ड इट बाय द एज ऑफ 6 and was awarded a Guinness Book of World Records and certified with the youngest tabla maestro in the world. पूरी दुनिया में उनको यह अवार्ड दिया गया, youngest tabla master at the age of 6. And of course he is an Indian, Truptraj Pandya. Now this important slide. I don't know whether you all are aware or not, but I really want to tell you about this child. He is from India, Kautilya Pandit. अभी पैंडमिक के टाइम पर भी उन्होंने बहुत प्रेडिक्शंस की, बट ये कौटिल्य पंडित, ही इज़ अ मास्टर माइंड. एंड इन इंडिया वी कॉल हिम अ गूगल बॉय. I am just sharing this slide and just watch it carefully. You will love it. All my class 4 students, please watch. बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का. मेरी गोद में है बहुत प्यारे से छोटे से हिंदुस्तान के जीनियस कौटिल्य पंडित इनका नाम है. और बहुत सामने देखो कितने सारे लोग हैं. हेलो कर दो सबको. हेलो. अच्छा लगा? एक बार और करो. अब सबको अपना नाम बता दो. कौटिल्य पंडित. अरे तुम चलवा क्यों गए? अच्छा ठीक है. अच्छा अब ये बताओ कि
कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। कहाँ पे रहते हो? ये देखिए, ये फर्स्ट क्लास का बच्चा है और इनसे अभी पूछेंगे कहाँ पर रहते हैं, तो बच्चों ये आप ही की स्टेट हरियाणा करनाल का बच्चा है। Hear it carefully. You all should be proud of him. उन्होंने आपकी स्टेट हरियाणा और हमारे भारत हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। करनाल में क्लैपिंग भाई, वो देखो अब सब बता रहा है। वेरी गुड। तो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो मैंने सुना, और जो पढ़ लेते हो भूलते नहीं हो, ऐसा है? नहीं, एक दो बार दोहरा लेते हो तो फिर भूलते नहीं हो। अच्छा, वेरी गुड। अब बैठ के बात करें। बैठो, आराम से बैठ जाओ। कौटिल्य पंडित करनाल के रहने वाले हैं। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनके दादाजी हमारे साथ हैं, शर्मा जी, और कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी हो तो हमारे पास इंटरनेट के अलावा, एनसाइक्लोपीडिया के अलावा और कोई जरिया और कोई चारा नहीं है। कौटिल्य के पास भी नहीं था। कौटिल्य की मदद की किताबों ने, उनके पिताजी ने, उनकी बहन ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके दादाजी ने ये सवाल पूछते गए, ये जवाब ढूंढ ढूंढ के कौटिल्य को देते गए। ना तो कौटिल्य की जिज्ञासा खत्म हुई और ना इनके परिवार ने इनकी मदद करना बंद की। जितने सवाल कौटिल्य ने पूछे, इन्होंने उसके जवाब चाहे कहीं से भी ढूंढ कर कौटिल्य को दिए। और आज हालत ये है कि कौटिल्य दुनिया के बहुत से क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जानकारी, मस्तिष्क का ऐसा विकास और किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता जो कौटिल्य में हमने देखी है, जो डॉक्टर साहब स्टूडियो में थे उन्होंने बताया, अद्भुत है, विलक्षण है, और इस प्रतिभा को हमें संजो कर रखना है। चलिए, और ये बताओ कौटिल्य, अब ये जो बस इतने सारे लोग तुमको मिलने के लिए आए हैं, इनसे बात करोगे ना? हाँ। ठीक है, आराम से बोलते। आप लोगों ने कुछ तैयारी की है? उसकी तैयारी बहुत मजबूत है। कभी ऐसा कोई बच्चा देखा है आपने? सर ये तो सेकंड गूगल है हमारे इंडिया का। कौन है? गूगल लड़का। ये बच्चे कह रहे हैं ये हमारे इंडिया का सेकंड गूगल है, गूगल मास्टर। छोटा पैकेट है सर। अच्छा, छोटा पैकेट बड़ा। वेरी गुड। तैयार? हाँ। ठीक है, तो पहला सवाल पूछूं मैं तुमसे? हाँ। नूरू सुना है तुमने? नूरू क्या है? नूरू नहीं, नौरू। नौरू क्या होता है वो? एक देश है। क्या है? एक देश है, 21 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का 21 वर्ग किलोमीटर का एक देश है। कहाँ है ये? ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा, और इसके आसपास कुछ कौन से देश हैं बता सकते हो? हम बताओ। ऑस्ट्रेलिया और है किरिबती। अच्छा, मार्शल आइलैंड, वानाटालू, टवालू, ये तो सबसे बहुत छोटे देश हैं और इनकी सबसे छोटे नौरू। हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं तो हैरान हूँ कि इनमें से बहुत सारे बच्चों को तो ओशिनिया के बारे में ही नहीं पता होगा, और इस बच्चे ने तो ओशिनिया में, आपने जब बोला नौरू, जिसने बोला नौरू नहीं, नौरू देश का इतना सही प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद उसके आसपास के जो ओशिनिया के जो एरिया है उसे इनफैक्ट मालिनेशिया कहते हैं। तो मालिनेशिया के देशों के बारे में जितने से नाम गिना गया, ये तो मुझे बड़ा अचंभा कर रहा है। उस बच्चे ने सही बोला कि इंडिया का दूसरा गूगल है ये। इस तरह से छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, देश के बारे में तो चलो मान सकते हैं, पर इतने छोटे छोटे द्वीपों के बारे में, वो भी माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मालिनेशिया के जो देश हैं। आपको मेरा ही सर घूमने लगा, आपने इतना सारा नाम ले लिया। अच्छा, न्यूजीलैंड सुना तुमने? हाँ। न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, कहाँ है न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है। और टोंगा के पास में एक देश है, टोंगा। टोंगा भी है वहाँ पे? हाँ। मुझे तो पता नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है जिसमें
टोंगा ट्रेंच है। टोंगा ट्रेंच और कार्मेडिक ट्रेंच के माध्यम से न्यूजीलैंड द्वीप का निर्माण हुआ। तो उससे जो द्वीप हैं वो टोंगा द्वीप ही वहां पे है। अच्छा, तो मेरी जानकारी केवल ऑस्ट्रेलिया की थी, टोंगा की जानकारी मुझे कौटिल्य ने दी। मैं तो इसीलिए मैं खुद हैरान हूँ कि आपने पूछा न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड का जवाब दिया इस बच्चे ने, साथ में टोंगा आपको गिफ्ट में दे दिया। अच्छा पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान के बारे में जानते हो? हाँ। कितना बड़ा देश है पाकिस्तान? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। बस 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ही है। इंडिया है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान की जनसंख्या पता है तुम्हें? हाँ। बताओ। पाकिस्तान की है लगभग 19 करोड़। लगभग 19 करोड़। और भारत की? 121 करोड़, उससे कई गुना ज्यादा। कब 121 करोड़ ये बता दे। 2011 और इसकी है 2011 से पहले 19 करोड़। 2011 की है। नहीं 19 करोड़, ये नहीं 2011 में इसकी 17 करोड़ थी। अच्छा ठीक है ठीक। वो पीछे का भी बता रहा है। और पाकिस्तान के आसपास और कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, चाइना और ईरान की राजधानी तेहरान, और ईरान के पास जाता है अपना इराक की बगदाद, और इस अपने पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। ये एशिया कॉन्टिनेंट के सभी देशों को अपना मानता है। अच्छा, आप बताएं प्लीज। हाँ। एशिया महाद्वीप के सारे देशों को अपना कहता है, ये अपना वो है, ये अपना वो है। अच्छा। अच्छा, स्वीडन के बारे में बता दोगे हमें? हाँ। स्वीडन कहाँ है? स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन तो है, नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया और है एस्टोनिया के पास। मैंने तो सिर्फ तुमसे ये पूछा था ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में। देखा बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग है ये वीडियो आप आराम से बाद में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आगे करती हूँ कौटिल्य यहाँ, और आप आराम से इस वीडियो को अब देख सकते हैं। ये आप ही की स्टेट हरियाणा खरहर गांव का बच्चा है। एंड सी हिज इंटेलिजेंस, मास्टर माइंड। इन्होंने पूरी दुनिया को अपने दिमाग से अचंभित किया है। सो माई लिटिल वंस, दैट्स फॉर ऑल टुडे एंड आई एम सेइंग गुड बाय टू यू ऑल। विल सी यू सून and see these slides again. You will get lot of inspiration and motivation. My good luck and love to you all, and I will see you soon. Take care. Bye bye.